મોટી અને વિશ્વની સૌથી પહેલી એવી 31 વર્ષીય ગૌ પર્યાવરણ અને આધ્યાત્મ ચેતના પદયાત્રા શુભાગમન આજે આપણા ગામમાં થયો છે। આ પદયાત્રાના સંચાલક અમારા પરમ પૂજ્ય ગુરુમાં છે અને અમારા પરમ પૂજ્ય ગુરુમાં માત્ર ભારતના જ નહીં આખા વિશ્વના એકમાત્ર એવા પહેલા સાધ્વીજી છે જેમણે નાની ઉંમરમાં પણ 31 વર્ષ સુધી સંપૂર્ણ ભારત વર્ષમાં ઉઘાડા પગે ભ્રમણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે। સાથે પરમ પૂજ્ય ગુરુમાએ આ પદયાત્રાને સફળ બનાવવા માટે પોતે પણ કેટલાક ઘણા કઠોર સંકલ્પો લીધા છે, જેમ કે 13 વર્ષ સુધી એમણે અનાજનો ત્યાગ કરી મૂક્યો। અનાજનો એક પણ દાણો મોઢે નહીં મૂકતા, માત્ર ગૌ માતાજીનો દૂધ અને અલ્પાહાર લઈને જ પોતાનું જીવન ચલાવતા। ઉઘાડા પગે ચાલે છે, પગે કોઈ પણ પ્રકારના બૂટ, ચંપલ, પગરખા નથી પહેરતા। ભલે શિયાળાની શરદી હોય, ચોમાસાનો વરસાદ હોય કે ભયંકર ઉનાળાનું તડકું હોય, પણ ઉઘાડા પગે ચાલે છે।
અને ચાલવા માટે કોઈ પણ જાતના વાહનનો ઉપયોગ નથી કરતા. આખા ભારતમાં 2.5 લાખ કિલોમીટરથી વધુ ચાલશે, પણ વાહન પર ગાડી પર બેસીને નહીં, પગપાળા અને ઉઘાડા પગે. અને આજે આપણા ગામની અંદર લગભગ 1 લાખ કિલોમીટરથી પણ વધુ ચાલીને આજે ઉઘાડા પગે પગપાળા આજે આપણા ગામમાં આવી રહ્યા છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુમાં કોઈના ઘરે જતા નથી, કોઈના મહેમાન નથી બનતા, કોઈના અહીં પગલાં નથી પાડતા, અને ક્યાંથી પણ કોઈ પણ પ્રકારનું દાન દક્ષિણા, પૈસા, રૂપિયા, ભેટ, ફાળો, અનાજ, કઠોળ કશું નથી લેતા. તમે સામેથી આપો તોય લેવામાં આવતું નથી. અહીં સુધી કે જે ગામમાં અને જે ઘરમાં ગાય માતાઓ ન હોય એ ગામનું ને ઘરનું તો પાણી પણ નથી પીતા. સુખદાયી આસનોનો ઉપયોગ નથી કરતા, સોફા ગાદલા ઉપર વિરાજમાન નથી થતા, માત્ર દરી ચટાઈ શેતરંજી ઉપર જ વિશ્રામ કરે છે. મોબાઈલ ફોનને સ્પર્શ નથી કરતા, મોબાઈલ ફોન પોતે સાથે રાખતા નથી. આપણે એક દિવસ મોબાઈલમાં ખાલી બેલેન્સ બી પતી જાય ને તો માથામાં દુખાવો શરૂ થઈ જાય છે કે વગર મોબાઈલ આજનો દિવસ કઈ રીતે નીકળશે. પણ એમણે તો મોબાઈલને સ્પર્શ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, અને આટલું મોટું કામ કર્યા છતાં પણ એમને પોતાનું નામનો લોભ નથી કે મારું નામ થવું જોઈએ એવો કંઈ લાલચ નથી. એમણે જાતે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે હું કોઈ પણ પ્રચાર પ્રસાર સામગ્રી ઉપર પોતાનું નામ કે ફોટો નહીં છપાડીશ. આપણાને એક નાનું અમથું કામ કરવું હોય તો પહેલાં પોસ્ટો પર મોટા અક્ષરે નામ હોવું જોઈએ, મોટો ફોટો હોવો જોઈએ, બધાને માહિતી પડવી જોઈએ. નામ થાય તો કામ થાય છે, વગર નામના કામ થતું નથી. પણ પરમ પૂજ્ય ગુરુમાને નામનો લોભ છે. અમારા પરમ પૂજ્ય ગુરુમાનો માત્ર એક જ ઉદ્દેશ છે. એમનું કહેવું છે કે ના અમારે નામ જોઈએ, ના અમારે દાન જોઈએ, ના અમારે માન જોઈએ, અમારે તો ફક્ત અને ફક્ત ગૌ સેવાથી યુક્ત અને ગૌ હત્યાથી મુક્ત, સ્વચ્છ સુંદર પ્લાસ્ટિક મુક્ત અને નશા મુક્ત હરિયું હરિયું હિન્દુસ્તાન. બીજું કેવા મહાન તપસ્વી સંત પધાર્યા છે જે આપણા પાસે તો કશું નથી લેતા, છતાં આપણા સૌને સત્સંગના માધ્યમથી કેટલું બધું આપી જાય છે, જેથી આપણું જીવન સુધરી જાય છે. આજે આપણા સૌના અહોભાગ્ય છે કે એવા મહાન તપસ્વી સંત આપણા ગામમાં પધાર્યા, એમના પગલા આપણા ગામમાં પડ્યા, જેથી આપણા ગામની ધરતી પણ પવિત્ર થઈ ગઈ. અને આજે આપણા સૌને એવા સંતોના દર્શનનો લાભ મળવા જઈ રહ્યો છે. અને સૌથી મોટી વાત તો આ છે કે દર્શનના સાથે સાથે આજે આપણા સૌને એવા મહાન તપસ્વી સંતોના મુખારવિંદે સત્સંગનો લાભ મળવા જઈ રહ્યો છે. જેના ઘણા ભાગ્ય હોય છે એને જ આ લાભ મળે છે, બધાને મળતું નથી. તો આપ સૌ અહીં વિરાજમાન નાના નાના બાળગોપાળો, ભાઈઓ બહેનો, વડીલો, સૌ ભક્તગણો અતિ સૌભાગ્યશાળી છો કે આપ સૌને એવા મહાન તપસ્વી સંતોના દર્શનનો લાભ અને એમના મુખારવિંદે સત્સંગનો લાભ મળવા જઈ રહ્યો છે. તો વધારે ન કહેતા માત્ર આટલું કહીશ કે પરમ પૂજ્ય ગુરુમાં આપણા સૌને જે કંઈ પણ સંભળાવશે એ આપણે સૌ શાંતિપૂર્વક બેસીને સાંભળશું અને પોતાના જીવનમાં ઉતારી પોતાનું જીવન સફળ બનાવીશું. બોલીએ ગૌ માતા કી, નંદી મહારાજ કી. ફરીથી દરેક ભાઈઓ તથા બહેનોથી વિનંતી છે, જેટલા પણ આમ તેમ ઊભા છે, પાછળ બેઠા છે, સૌથી વિનંતી અમને સૌને એમની અમૃતમય વાણીનો લાભ મેળવી. જય ગૌ માતાજી. और सजीवों माता एवं श्री कृष्ण भगवान
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वकामदुहे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री गौ माता जी की, श्री बेल भगवान की, नंदी महाराज की, सकल गो रक्षकों की, सकल गो भक्तों की, गौशाला धाम की। नमः पार्वती पतये हर हर अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट उदंड आसन पर आसीन होकर जीव को अपने ज्ञानमय प्रकाश से प्रकाशित प्रकाश प्रदान कर अज्ञान रूपी अंधकार को जड़ से खत्म कर देने वाले परम उच्च सद्गुरु भगवान के अनंत निरुद्ध श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। नंदिनी कपिला कामधेनु स्वरूप सकल जगत पर सकल विश्व पर दया कृपा बरसाने वाली, जिनके सुंदर सिंहों पर सारी सृष्टि का भार है, मूत्र में कल कल बहती भारती गंगा जी की धार है, मल में रमा देवी लक्ष्मी जी का परम सृष्टि जो भारतीय संस्कृति की मूलाधार प्राणाधार है, ऐसी सकल भारतीय गौ माताओं के चरणों में मेरा मान आप सकल भौतिक देहधारियों को मेरा हृदय। અમારી ઉપસ્થિતિને લઈ તમારા મનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો છે કે આ લોકો કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યા છે, ક્યાં જવાના છે, અમારાથી શું લેશે, અમને શું આપશે। તો તમને અતિ સંક્ષિપ્તમાં યાત્રાનો થોડો પરિચય આપી દઉં। આજથી 10 વર્ષ પહેલા मतलब 4 दिसंबर 2012 महाराणा प्रताप सिंह जी की वीरभूमि हल्दीघाटी राजस्थान से सुबह 3:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये यात्रा हल्दीघाटी से रवाना हुई। अब तक 1,00,000 किलोमीटर की दूरी को नंगे पैर पैदल पार करते थे। 20,000 गांवों कस्बों शहर ढाणियों में भगवती गाय माता जी की महिमा का प्रचार प्रसार बखान करते थे। आज ईश्वर कृपा से भगवत कृपा से यह यात्रा हमारे आपके प्यारे से पहुंची है। इस यात्रा के प्रणेता मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कई कठोर संकल्प भी लिए हैं, जैसे कि नंगे पैर चलना, कोई के घर नहीं जाना। लेकिन साथ ही गुरुदेव भगवान ने इस यात्रा को भी एक बड़ा सुंदर सा नियम दिया है, और वो नियम है हमारे यात्रा के यात्री, पदयात्री, कार्यकर्ता, संत, अतिथि कभी किसी के घर नहीं जाते। कहीं से भी किसी रुपया, पैसा, दान, भेंट, उपहार, नारियल, अगरबत्ती, अन्न, जल, यहाँ तक कि पानी भी हम किसी गांव का मांग करके नहीं पीते। कोई प्रेम से पिला दे तो पी लेंगे, अगर उसके घर में गौ माता जी है और वह संपूर्ण परिवार निर्वस्ती है तो। हमारे यात्रा के जो वाहन हैं उनमें पानी की टंकियां लगी हुई हैं। जब उस टंकियों का पानी बीत जाता है, रीत जाता है, खत्म हो जाता है, तो मूल्य चुका करके हम उन टंकियों में पानी भरवाते हैं। बाकी बिना मूल्य चुकाए तो पानी लेना भी हमारी परंपरा में अपराध है। आपके गांव में आए, जितनी देर जैसी आप सज्जनों की इच्छा होगी
उतनी सी देर आपको भगवती गौ माता जी की सुंदर सी दिव्य अलौकिक कथा सुनाएंगे और तत्पश्चात बिना कुछ ले यहाँ से शाम को अगले गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। और भी कुछ विचार आप लोगों के मन में होंगे कि तमारी आ बધી વાતો બહુ સરસ છે, પણ તમે किन उद्देश्य यात्रा के यही उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा, आध्यात्म का प्रचार प्रसार हो ताकि पाखंड अंधश्रद्धा भारत भूमि से मिटे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इस यात्रा का कि विगत 1200 वर्षों में हम विधर्मियों के साथ रह करके अपनी गाय माता की दिव्य महिमा को भूल चुके हैं। उन गाय माता जी के दिव्य महत्व को हम जाने, समझे, पहचाने और गौ माता जी की सेवा से सुखी, श्रेष्ठ, संपन्न, खुष्ट जीवन जिए, ये इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और भी कुछ संशय कि તમારી આ બધી વાતો બહુ સરસ છે, પણ તમે ગાય માતાની કથા કહેવા માટે આવ્યા છો અને ગાય માતાની કથા કેવી રીતે થાય? ગાય તો પશુ है, प्राणी है, ढोर है, मवेशी है અને આજે તો કોઈ ગાય માતાને રાખવું પણ પસંદ નથી કરતું। કોઈક માણસ રાખે છે તો પણ ક્યાં સુધી? દૂધ આપે છે એટલે માતા માતા અને दूध आपको बंद कर दे तो देला ताने घर सुबह निकाला। क्या ऐसे कोई गाय माता जी की उपयोगिता है? बिल्कुल नहीं। हम लोगों की सोच बन गई कि गाय माता सिर्फ दूध के लिए रखी जाती, पर यह सोच है, सच नहीं है। सच तो यह है कि दूध तो गाय माता जी दे तो प्रसाद रूप में लेना चाहिए, बाकी गाय माता दूध नहीं भी दे तो भी वो गाय माता हमें बहुत कुछ देती है, जिससे अपना जीवन सुखी, श्रेष्ठ, समृद्धशाली और अद्भुत बनता है। अब તમે કેવો એવું ગાય માતા હું આપે છે અને સગું મોટી વાત તો ગાય માતાને તમે માતા કહો છો, गाय माताની कथा કહો છો, पर गाय माता भगवान की होती और गाय माता जी भगवान ही है। अगर आप लोगों के गाय माता जी के भगवान होने पर मन में कोई संशय है तो मैं आपकी सेवा में एक सीधा सा प्रमाण रखती हूँ, उस पर आप विचार करना। फिर आप लोगों को लगे कि गाय माता जी माता है, भगवान है, दिव्य है, अलौकिक है, तो हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आपको लगे कि नहीं गाय माता जी तो जानवर है, तो जानवरों की क्या कथा करनी, क्यों समय को बर्बाद करना। फिर आप अपने घर और हम हमारे अगले गांव चले जाएंगे। ठीक है? आप कृष्ण भगवान को मानते हो? मानते हो तो कृष्ण भगवान की बात भी मानोगे। आज से लगभग 10 वर्ष पहले धरती पर कृष्ण भगवान का अवतार हुआ और जब धरती पर कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो 12 वर्ष की उम्र तक श्री कृष्ण भगवान ने गौ माताओं को चराया। जब तक श्री कृष्ण भगवान ने गौ माताओं को चराया तब तक उन्होंने अपने पैरों में जूते, चप्पल, पगरकी, सैंडल, पहुनिया नहीं धारण की। क्यों? दरअसल पहली बार जब कृष्ण भगवान गाय माताओं को चराने के लिए जा रहे थे तो उसका मुहूर्त निकाला गया। शांडल ऋषि आए, मुहूर्त निकाला। कल की अष्टमी बड़ा शुभ दिन है और कल अष्टमी के दिन ही कृष्ण को चराने के लिए जाएंगे। હવે તમે મારે એક વાત બતાવો, ખાવાનું, પીવાનું, ભમાણું, ફરવાનું મુહૂર્ત નીકળે છે? નથી નીકળતું। મુહૂર્ત તો કોઈ સારું કામ હોય, મોટું કામ હોય ત્યારું મુહૂર્ત નીકળ્યા કરે। અને કૃષ્ણ ભગવાન ગાય માતાને ચરાવવા માટે રવાના થયા અને ત્યારું મુહૂર્ત નીકાળ્યું। તો इसका सीधा सा अर्थ है कि गाय माता जी को चराना कोई साधारण काम नहीं है, व्रत है, साधना है, अनुष्ठान है। આ માટે એનો મુહૂર્ત નીકાળ્યું અને જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન ગાય માતાને ચરાવવા માટે રવાના થયા ત્યારે એમની માँ यशोदा माई उनके हाथ में नई 3 चीजें देती, जिसमें से लखुटी और काली कपलिया को भगवान ने सहित ले लिया और जूते पहनने से मना कर दिया कि माँ मैं जूते नहीं पहनूंगी। मैया ने बार बार समझाया, कान्हा तू जंगल जाएगा, कांटे कंकर भाटे पत्थर होंगे, चुनेंगे तेरे नाजुक से चरण कमल खराब हो जाएंगे, लाला जूतों को पहन। कहते नहीं माँ मैं जूते नहीं पहने। मैया ने बार बार समझाया, फिर भी कृष्ण भगवान नहीं माने। अंत में मैया ने कहा ठीक है ललित, जूते नहीं पहनने मत पहन, लेकिन मुझे कारण बता कि तू जूते क्यों नहीं पहनता। तब भगवान ने उत्तर देने की बजाय अपनी माँ को एक प्रति प्रश्न पूछ लिया कि माँ तू मुझे एक बात बता, तू रोज भगवान के मंदिर में जाती? कि हाँ जाती।
तो पैरों में जूते चप्पल पहन के क्यों नहीं जाती? भगवान के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैया ने हंसकर के धीरे से कन्हैया कुमार ने कहा, अरे मेरे भोले पगले कान्हा, लल्ला मंदिर में भगवान होते हैं और भगवान के सामने जूते चप्पल पहन के नहीं जाते, नहीं तो भगवान का अपमान होता है। तुरंत कृष्ण भगवान ने कहा, ओ मेरी प्यारी दुलारी मैया, तू अगर अपने भगवान के संग सामने जूते चप्पल पहन के नहीं जावे तो तू ही बता, 33 कोटि देवी देवता 68 करोड़ तीर्थों को अपहरण कर हम मानव के कल्याणार्थ गोलोक धाम से धराधाम पर अवतरित भगवती गौ माता जी के संग सामने में जाऊं तो जूते चप्पल पहन करके जा। कृष्ण भगवान को अपने भगवान कहते और कृष्ण भगवान गौ माता को अपने भगवान कहते। हम भगवान की पूजा आरती करके भगवान को रिझाते और कृष्ण भगवान गौ माता जी के नंगे पैर सेवा करके गैया को रिझाते। अब आप भी विचार कर बताओ, स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी गाय माता जी को अपने भगवान कहते हो, ऐसी भगवती स्वरूपा गाय माता जी को जब से हमने पशु समझ करके रखा है, तब से उसी दिन से अपने जीवन में दुख दर्द तकलीफें बढ़ती चली जा रही है। तमें बताओ, आज को तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबने सुख की तलाश। आज सारा संसार जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुख की तलाश में है, जबकि आज से 35 वर्ष पहले हम सभी लोग सुखी थे, क्योंकि हम सबके घर में गौ माताएं थी। हटेक नहीं हते, प्रत्येक घर में गाय माता पण हती, बळद पण हता। आज से 35 वर्ष पहले અને જ્યાં સુધી અમારા ઘરમાં ગાય માતાની સેવા થતી, ત્યાં સુધી जीवन કેટલું સરસ હતું। लोग 100 साल की उम्र पूरी कर लेते, पर गोली कोड़ी डिग्री खा करके सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑपरेशन करवानी जरूरत न હતી। આજે અમારો હાલ શું છે? मुश्किल थी 70-80 वर्ष सुधी जियो छो, आमा पण 40-45 वर्षनी उम्रमा बीपी, डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, एलर्जिकल प्रॉब्लम एटला बधा रोग वधी जाय छे कि जीवन जीवવાની इच्छा शक्ति खत्म थई जाय छे। आची बात केम छो? मन के सुख की बात करो तो मन का सुख किसमें है? खूब सारे पैसे कमा लेंगे तो क्या अपन सुखी हो जाएंगे? नहीं, पैसों में सुख नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई पैसों में सुख है, तो आप कल्पना करो, अपने इसी सनवल्ला में आपको रहने के लिए 10 करोड़ का बढ़िया सा आलिशान बंगला मिल जाए। 10 करोड़ का नौकर चाकर दास दासिया घूमने फिरने के लिए गाड़ियाँ, सारी सुख सुविधा उस घर में है, लेकिन उस 10 करोड़ के मकान में आपसे आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रेम नहीं करता। माँ बाप, सास ससुर, बहू, बेटे, बच्चे, पति पत्नी, देवरानी जेठानी, कोई भी, तो क्या हम उस घर में हंसते हंसते जी सकते हैं? जीवन जीने के लिए पैसों से भी ज्यादा जरूरी है परिवार में प्रेम होना। प्रेम है ना, तो कच्चे मकान में भी स्वर्ग सा सुख मिल सकता है, और फिर आलिशान बंगले में प्रेम नहीं है तो वहाँ का तो गुलाब जामुन का और हलवा पूड़ी का भोजन भी जहर बन जाता है। जीवन को सज्जनों सुखमय बनाने के लिए प्रेम बड़ी आवश्यकता थी, और वो प्रेम आज से 35 साल पहले था। केटलू प्रेम हतु? आज से 100 वर्ष पहले लोग, 35 वर्ष पहले लोग, 4 भाई, उनकी एक शादी के बाद एक पत्नी, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे, 16 से 20 जनों का परिवार एक छत के नीचे रह करके एक चूल्हे की बनी हुई रोटली खा लेता था। हतु? आज एटलू प्रेम छे बा? આજે હાલ એટલે ખરાબ છે કે દીકરો એક છે અને ભોજન બે બાજુ વણે છે, દીકરો અને બહુ લગ્ન થયા પછી अलग ખૂણામાં ખાણો રસોઈ બનાવીને ખાવે છે, और भरे बुढ़ापे में दादा दादी इधर अकेले रह करके टुक टुक करके कच्ची पक्की रोटली सेक करके खा रही। आशी बात करो छे। रुपये पैसे की भी बात करो तो आज से 35 वर्ष पहला रुपया पैसाનું સુખ જેટલું હતું આજે નથી। पहला कोई पण काम करो तो खुद की कमाई से काम हो जाता था, लोन लेने की जरूरत नहीं थी। आराम से एक औरत के पास ज़्यादा नहीं पर 1-1.5 किलो चांदी हो जाती थी। पहनने के लिए 3 से 5 तोड़ा सोना वो जीवन भर में ले लेती थी। अबे आज एवं छे? आज तो घर भी बनाओगे तो लोन लेना पड़ता है,
गाड़ी खरीदेंगे तो किस्त पर उसका पेमेंट जमा करना पड़ता है, मतलब वो भी रोकड़ नहीं खरीद सकते। अगर बच्चों को उच्च शिक्षा दे रही हैं तो एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। अगर बच्चों के घर मकान बना रहे हो या फिर उनके धंधे डलवा रहे हो या उनकी शादियां करवा रहे हो तो भी अपने को लोन लेना पड़ता है। हाँ जी बात। पहला 50 मेहमान आ जाता तो पहली माता बहने देसी गाय माता के घी में से रवा सेक करके शीरा पूड़ी खिला करके 100 को मस्त कर देती थी। अब आज अगर अचानक अपने घर पर 50 मेहमान आ जाए तो शीरो पूड़ी बने, 100 जनों का शरबत बनाना पड़े ना तो भी बच्चे को दौड़ाना पड़ेगा कि दुकान थी खांड लेना आवी जा પછી शरबत बने छे। अच्छी बात। अगर आज से 35 साल पहले जो सुख अपने जीवन में था, धन का, तन का, मन का, सारे सुख आज भी चाहते तो उपाय सिर्फ एक, और वो उपाय है भगवती गाय माता। आज भी हम गाय माता जी की बड़े श्रद्धा के साथ सेवा करें तो संसार के सारे सुख में भगवती गो माता जी की कृपा से सहज मिल सकते हैं। कुछ सुखों पर बात करते। पहला सुख निरोगी काया। आज बधाना घरे कोई जो अपने बीमारी की जांच भी कर लेती है, दवाई भी देती है और उसी के कारण अपन निरोगी रहते। तमे एक मारे बात बताओ, તમારામાંથી કોના કોના ઘરે આજ પણ દેશી ગાય માતા છે? 4-5 जनों के घर पे। तो जिनके घर पर गाय माता है वो मेरी बात को तुरंत समझेंगे। जिन्होंने पहले सेवा कर रखी, अगर आपके देसी गाय माता है तो रोज नहीं, कभी कभी वो गाय माता क्या करती, अपने नाक के पास उनकी नाक ला करके अपने निश्वास को सूंघती थी। ऐसा गाय माता कब करते थे, जब उनको पता चल जाता था कि इसके शरीर में कोई मल से, इसलिए फर्क पड़ गया। बाकी गोबर से गौर को लेते थे तब तक चश्मा लगाने की दिक्कत, हाथ पैरों में जलन, दाग, खाज, खुजली, एलर्जी का प्रॉब्लम। हमने गाय माताओं को छोड़ा है, उनके गोबर गोमूत्र को त्याग दिया, तब से अपने जीवन में रोग पड़े हैं। आज भी अगर पहले जैसा सुखी निरोगी जीवन चाहते हो तो देसी गाय माता को आंगन में बांध लो और उनके गोबर गोमूत्र से भी अगर अपन घरों को लेते तो अपने शरीर के रोग मिट जाते हैं, सिर्फ गोबर की खुशबू मात्र से, और भी नहीं। गाय माता जी अपने शरीर के सभी रोगों को खत्म कर देती है। उनके पास कहीं दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं ऐसी, बस आपको उसके लिए 3 काम करने पड़ेंगे। नाक और नाभि पर लगा लो, ऐसा रोज अगर कर लेते हो तो 4 महीने में दाखा लिए खुजली, एलर्जी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और जीवन भर करोगे तो दोबारा ये समस्या आपको कभी नहीं होगी। बोलो गो माता ने। बीपी की समस्या है आजकल, तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर यही कहेगा कि बीपी हो गई, बढ़ गई है। बीपी को अगर रोग बढ़ गया है या बीपी ज्यादा हो बढ़ जाती है, 150 से ऊपर चली जाती है, 160 तक चली जाती है, तो उसके लिए सिर्फ 5 देसी लहसुन की कलियों को हल्का सा पत्थर पर कूट करके 5 मिनट हवा में छोड़ दो सुबह, उसमें दवाई बनती है। फिर उसको गाय माता जी के 1 वाटकी दही में डाल करके सुबह कच्चाई चबा चबा करके खाली पेट सुबह सुबह जल्दी उठ करके खा लो। सिर्फ 3.5 महीने तक करोगे, खून पतला हो जाएगा, जिससे बीपी की समस्या का समाधान हो जाएगा। शुगर हो गई है, डॉक्टर साहब खांड અને શક્કર ખાવા માટે, ખાંડ ખાવા માટે, ગોળ ખાવા માટે ના પાડી દીધું છે, चिंता करवानी नहीं। गुड़मार और जामुन की गुठली दोनों को समान मात्रा में पीस करके घंटी पर बढ़िया बारीक पीस करके 1-1 चम्मच चूर्ण भोजन से 1 घंटा पहले ले लो, बॉडी में ही इंसुलिन बनने लग जाएगा। इसलिए अलग से आपको इंसुलिन मेंटेन करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। और घुटन में दर्द छे, दर्द होता है, अगर उठने बैठने में दिक्कत होती है, डॉक्टर कहते हैं कि लिगामेंट्स घिस गए हैं, इसलिए तकलीफ हो रही, चिंता करने की जरूरत नहीं। लिगामेंट्स भी अगर घिस गए तो उसके लिए हळदर, मेथी, सौंठ અને દેશી બાવળની ફલ્લી બંને વસ્તુ 4 વસ્તુ 200-200 ગ્રામ લઈને ઘંટી પર પીસીને ચૂર્ણ બનાવી લો। પછી 2-2 ચમચી ચૂર્ણ સવારે સાંજે લેવું છે और चूर्ण लेने के बाद 50 मिनट में 1.5 से 1.5 लीटर गुनगुना पानी पी लेना, जिससे दवाई गर्मी नहीं करेगी। बपोरे 1 वाटकी गाय माताना दहीમાં 1 મગના દાણા જેનો ચૂનો નાખીને ખાઈ લો અને રાત્રે ઊંઘવાના પહેલા 2 ચમચ अश्वगंधा चूर्ण 200 ml गाय माता दूधना साथे ले लो। 3.5 महीने में आपका 80% घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, पक्की गारंटी।
पेट में पथरी बन गई है, पान फूटी रहने गुजराती माँ कहवे छे बे पत्ता बारीक चबा करके खाओ, ऊपर से आधा कप गोमूत्र और दिन भर में 13 लीटर पानी पी जाओ। 1.5 से पौने 2 महीने में पथरी पूरी तरह से पिघल करके निकल जाएगी। गाल बर्डर में पित्ताशय में पथरी फंसी हुई है तो भी चिंता मत करो। 2 चमची गोखरू काटी खबर छे जंगल में होती है, गोल सा होता है और उसके ऊपर 2 कांटे होते हैं। बहुत अगर चुभ जाए ना तो 7-8 दिन तक उसका दर्द जलन सी बनी रहती है। गोखरू काटी की 2 चमची पानी में डाल करके उकाड़ लो और सुबह शाम उस उकाड़ी को पियो। उसके ऊपर भी वही गोमूत्र 13 लीटर पानी पी जाओ। 12वें दिन तक डेली पीने के बाद सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, पथरी पिघल करके निकल जाएगी। बवासीर की समस्या है, मलत्या के साथ खून निकलता है। कुछ लोग ऑपरेशन करा लेते हैं फिर भी रोग नहीं मिटता है। चिंता की जरूरत नहीं। अगर बवासीर की समस्या है तो उसके लिए खाली 11 दिन तक जैसे आप सुबह सुबह गाय माता का दूध दोहो, ताजा दूध में 1 नींबू निचोड़ के वही गौ माता के पास बैठ कर के पीजिए। दूध निकाला, नींबू निचोड़ा, पिया। 11 दिन डेली पी लो। 12वें दिन तक तो आपकी बवासीर की समस्या जड़ से खत्म हो जाए। बड़ा कैंसर भी हो गया है, लीवर का हो गया है, किडनी का हो गया है, दारू पीने के कारण स्टमक का भी होता है, या कुछ लोग मसाले खाते उससे भी हो जाता है। जर्सी का दूध पीने वाले को तो नॉर्मली कैंसर होता है क्योंकि जर्सी के दूध में तत्व ही ऐसे होते हैं जो इंटरनल इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। पहली सलाह तो मैं ये दूंगी कि अगर आप में से किसी के घर पर जर्सी गाय है तो आज ही जर्सी गाय को निकाल दो। क्योंकि कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का कहना है कि लगातार 17 साल तक जर्सी का दूध पीने से कैंसर होने की संभावनाएं 22.5% बढ़ जाती है। इसलिए जर्सी का दूध ही नहीं पीना है, देसी गैया का ही दूध पियो। अगर आपको दूध पर ही आप घर खर्च निकालते हो, पशुपालन ही आपका भी मुख्य धंधा है, दूध निकाल करके बेच करके पैसा कमाते हो, तो देसी गाय माता रख लो। और देसी गाय माता जी आपके घर में अगर इतना दूध नहीं दे रही है तो भैंस रख लो एक बार, पर जर्सी तो गलती से भी नहीं रखनी। घर में देसी गाय माता ही रखनी है। जर्सी का दूध पीने से तो रोग, कलह, बीमारियां, दरिद्रता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसकी गारंटी है। वो राक्षस कुल का पशु है, कलयुग की पूतना है और पूतना सुख तो दे नहीं सकती। हम सोचते वो तो 5-5 लीटर दूध देती है, आराम से 250-300 रुपए का दूध बन जाता है, तो इसको रखेंगे। सज्जनों, दूध के चक्कर में तो लग गए 4 साल दूध देगी, 5वें साल से वापस पैसे, बीमारी इतनी बढ़ती कि पैसे खाना शुरू कर देते। डांग की गाय माता रख लो। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की रखनी हो तो ये कोकन कपिला रख लो। बाकी देसी गाय माता के अलावा तो अन्य पशु रखो ही मत। दूध तो डांगी गाय माता भी एक टाइम का 3-3 लीटर दे देती। और हम लोग क्या सोचते हैं, एक जर्सी 5 लीटर दूध देती है, एक डांगी तो 3 लीटर दूध देती है। पर एक जर्सी जितना खाती है उतना 2 डांगी गाय माता मिल करके भी नहीं खा पाते हैं। जर्सी खाती भी तो ज्यादा है, तो जितना जर्सी को खिला रहे हो उतना खिला करके तो हम 2 गाय माताओं की सेवा कर लेंगे और 2 गौ माताएं 5-6 लीटर दूध आराम से ले लेंगे। तो देसी गाय माता जी का ही दूध पीना है। और अगर किसी को कैंसर हो ही गया है तो उसके लिए इलाज 1 कप गोमूत्र, आधा कप छान का रस, 5 बिल्वपत्र की चटनी, बढ़िया सबको मिला करके सुबह शाम ले लो, जिस पर 1.5 घंटे तक कुछ रहा नहीं। बपोरे 1 वाटकी गाय माताना दहीમાં 31 તુલસીના નાના નાના પત્તા નાખીને ખાઈ લો અને રાત્રે 1 મિલીગ્રામ हीरे का भस्म 100 ग्राम मध में मिला करके रखो, जिसमें इस व्यक्ति को चढ़ा दो। खाली केवल मात्र 3.5 महीने में खत्म हो जाएगा। बोलो गौ माता नी, बेल भगवान नी। अब घણા બધા રોગ છે, બધા રોગોની વાત કરો તો પછી તો टाइम થઈ જશે, 6-7 साल भी बैठ जाए तो बीमारियां तो खत्म होगी नहीं। और मैं अभी दवाई बता भी दूंगी तो दवाई का नाम याद रखो, फिर वो कितनी लेनी है, भोजन से पहले बाद लेनी है, खाली पेट लेनी है, किसके साथ लेनी है, इतना सब कुछ याद रखना संभव नहीं है। તમે અત્યારે પણ चिंता न करो, आ बधी बातों તમને ચોપડીમાં લખેલી મળી જશે આપણા ગુજરાતી ભાષામાં।
बीजी चर्चा करूँ छू मन का सुख किसमें है। जैसे कि बेटी शादी लायक हो गई है लेकिन उसके अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, मन जैसा रिश्ता नहीं आ रहा है। हमको बेटी के लिए अच्छा पति चाहिए जो व्यसन नहीं करे, दारू पी करके रोज मारे कूटे नहीं, ऐसा ही पति चाहिए। नहीं तो 250 ग्राम पिए ने एक ही लात में बेचारी गुजर सुधर करे, ऐसा नहीं चाहिए। 4 पैसे नहीं कमाता हो, समाज में इसकी इज्जत हो, इधर उधर पराई औरत की तरफ डोले डाले नहीं। और ऐसा भला पति अगर बेटियों को चाहिए तो उसके लिए सुंदर सा अनुष्ठान है जो माँ सीता जी और माँ रुक्मिणी जी दोनों देवियों ने करके विपरीत परिस्थिति में भी भगवान राम ने पाया। वही अनुष्ठान आपके लिए बता रही हूँ। शान से सुनो बेटी, भांजी चुखले का पानी। 9 सोमवार का अनुष्ठान है जिसमें सोमवार के दिन विद्या रानी को सुबह जल्दी करके गोमूत्र जल से स्नान करना है। गोमूत्र में गंगा जी નો નિવાસ ચરણે ગંગાજી પવિત્રવાળું કામ કરે છે। પાકું થઈને તમે કોઈ પણ દાન ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરો તમને સફળતા મળશે। પછી ગાય માતાના છાનાના રાવથી દાણે સારી રીતે સાફ કરવું છે અને આમાં સ્વચ્છ ગાય માતાનું કાચું બિલકુલ દૂધ ભરવું છે। બાકી પાણી दूध અને પાણી મેળવીને ભોળાનાથના મંદિરે જઈને બેટી ખુદ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव जी पर सारा जल चढ़ाते, अर्ध परिक्रमा करके फिर गाय माता को शिव जी और माँ पार्वती को प्रार्थना करें कि मुझे उत्तम पति मिले, ऐसी कृपा करना। और घर आकर के घर की गाय माता नहीं है तो फिलहाल अड़ोसी पड़ोसी की गाय माता जी की 9 परिक्रमा करते समय मंत्र बोलना है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामोदरी गाता। और ये मंत्र बोल के गौ माता के चरणों में प्रणाम करने हैं। जो भी बेटी श्रद्धा पूर्वक इस अनुष्ठान को करेगी निश्चित रूप से 11 सोमवार पूर्ण होने से पहले उसको फल मिलेगा। लेकिन उपवास भी करना है। उपवास में सिर्फ 3 चीजें, भीतर के शुद्धि के लिए गुड़ बर गौमूत्र पीना है, दिन में देसी गाय माता के दूध से जमा या दही छाछ खाना है, और रात को सोते समय गाय माता जी का दूध पीना है। इन 3 चीजों के अलावा पानी भी मुंह के अंदर नहीं डालना, तो फल फ्रूट तो भूल ही जाए। जो भी बेटी सिर्फ इन 3 चीजों पर रह करके 9 सोमवार का अनुष्ठान करेगी, 11 सोमवार पूर्ण होने से पहले उस बेटी के लिए उत्तम खानदान से बढ़िया लड़की का रिश्ता आएगा और सही समय उस बेटी की शादी सफल होगी ही होगी। कोई कठिन काम नहीं। बेटी घर की लोटा घर का, शिव जी गाँव के मार्केट जाना है, 2 रुपए की चीज लानी नहीं, घर बैठे काम हो जाएगा। हाँ, एक बार बेटी को 9 दिन भूखा भले रहना पड़ेगा, पर जिंदगी भर की झंझट खत्म करवा लो। बेटों को भी अच्छी पत्नी चाहिए जो शादी के बाद पति की भी इज्जत करे और बूढ़े सास ससुर की सेवा कर ले, तो उनके लिए भी उपाय है। नहीं तो आजकल कैसी पत्नियां मिलती है, शादी करके आती है, 2 दिन भी नहीं रहती और चुट्टी बजा करके कह देती इस बुढ़ा बुढ़ी के साथ इस गामड़े गांव में मैं रहने वाली नहीं हूँ। सिटी में रहो, कार लेकर के, फ्लैट लेकर के तो ठीक, ऐसी ज्यादा होगी ना आजकल। ऐसी खतरनाक अगर नहीं चाहते हो तो उसके लिए प्रसवरत गाय माता, मतलब देहाती भी गाय माता जो बछड़ा बछड़ी को जन्म दे रही है, ऐसी स्थिति में अगर लड़के उस गाय माता की 9 प्रदक्षिणा कर लेते तो परिणाम स्वरूप उनको उत्तम सुलक्षणा सुभद्रा श्रेष्ठ कुल खानदान में जन्मी हुई, पतिव्रत धर्म का पालन करके पति की इज्जत करने वाली और बूढ़े सास ससुर की प्रेम भाव से सेवा करने वाली पत्नी प्राप्त होती। कोई कठिन काम नहीं। અત્યારે ગાય માતા નથી તમારા ઘરે, પણ તમે ગાય માતા લઈને આવો તો પરિક્રમા તો થઈ શકે। નહીં તો કોના ઘરે અગર બહુ ગાય માતા છે તો ત્યાં આતા જાતા રહ્યો। કોઈક દિવસે ખબર પડી ગઈ કે આજે આ ગાય માતા બેવા વાળી है तो फिर उसी समय उसी जगह रुक जाओ। 12 घंटा 14 घंटा तो गाय माता तो ब्याएगी, जिससे ब्याह फटाफट परिक्रमा करेगी। पहला घरोघर काम होती, इसीलिए तो पहले पत्नी इतनी शानदार मिलती कि वो डोली में बैठ के आती और पत्नी ले जाती। हाँ, फिर दूसरी बात करते हैं भाइयों की कमाई। पैसा तो सबको चाहिए, आज हर जगह पैसा चाहिए। लोग लाज निभाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए मोबाइल में बैलेंस, गाड़ी में डीजल, पेट्रोल,
शादी होते ही पत्नी का श्रृंगार का खर्च, बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई का खर्च, तब तक माँ बाप बूढ़े होंगे उनकी दवाई का खर्च, और इस सब के लिए चाहिए पैसा। इनकम है ज्यादा, खर्च है कम, तो इंसान लेता है कर्ज का मर्ज भी समय पर चुक जाए तो चिंता की जरूरत नहीं, और कर्ज अगर नील होने का नाम ही ना ले तो इंसान लेता है टेंशन, और टेंशन की स्थितियां 3, डिप्रेशन, गलत धंधा और फांसी का फंदा। इसमें से एक भी सिचुएशन अगर आप भाई अपने जीवन में नहीं चाहते हो तो सभी आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए किसी को घर नहीं बुलाना, घर बैठे काम हो जाएगा। खूब सारे लोग तो संशय करते कि महाराज હું વાત કરો છો, 3 લોટામાં શું થશે? બધું થઈ જશે। કોઈ દીકરો છે બહુ ભણી ગયો, એન્ટ્રાન્સ એક્ઝામ, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરે છે, पर 1-2 पॉइंट માટે રહી જાય છે, इंटरव्यू 50 दे દીધા पर तो પણ अभी तक इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है, नौकरी लग गई, प्रमोशन नहीं हो रहा है, दुकान धंधा डाल दे अच्छे से चल नहीं रहा है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नील होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी कोई भी आर्थिक समस्या अगर आपके जीवन में है तो इन सकल आर्थिक समस्याओं का समाधान भगवती गौ माता जी की कृपा से निश्चित रूप से होगा ही होगा, इसकी गारंटी। ઘણા બધા તો સંશય કરે છે કે મહારાજ હું વાત કરો છો, તમારા મનમાં કોઈ સંશય हो तो તમને અમારી વાત સાંભળો। पिछले 10 वर्ष से हमारी यात्रा चल रही है, 20,000 गाँव कस्बों शहर ढाणियों में घूम करके हम आ गए, लेकिन अब तक हमने हमारी यात्रा पर 1 रुपए का या 1 कप चाय का कलंक नहीं लगने दिया। कहीं से भी किसी से भी रुपया, पैसा, दान, भेंट, उपहार, नारियल, अगरबत्ती, फूल, माला कहीं से कुछ भी स्वीकार नहीं करते, और जिंदगी राजे महाराजा से भी मस्त जीते। प्रश्न बड़ा गंभीर कि अगर आप कहीं से कुछ लेते नहीं हो तो आपका काम कैसे चल रहा है? उसको मेरे गुरुदेव आज भी करते हैं, और आप आश्चर्य करोगे सिर्फ 20 मिनट पर उन 20 मिनट में इतना पैसा आ जाता है कि हमारी तीनों यात्राएं अच्छे से चल रही है। अब तक हमने झोली फैलाई नहीं और आगे फैलाएंगे नहीं, हमें हम पर विश्वास है। अब जब हमारा काम चल रहा है तो आपका चलेगा कि नहीं चलेगा? करना क्या है, ध्यान से सुनो। रोज सुबह जल्दी उठ करके आधा कप गोमूत्र पीना है, पाप और रोग दोनों मिट जाएंगे। पाप के कारण अटके हुए काम या जो विफलता मिल रही वो सफलता में बदल जाएगी, और रोग होंगे ही नहीं, बीमार पड़ोगे नहीं, लगातार काम करोगे तो प्रोग्रेस। बीजू 3 लोटा जल एक साफ सुथरे बर्तन में ले लो, उसमें से पहला लोटा जल उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय मंत्र बोलो, आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं। दूसरी बार लोटे में पानी लो, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव भोले बाबा पर जल चढ़ाओ। शिव जी पर जल चढ़ाते समय शिव जी के भुजाओं में, गले में जो भी नाग देवता उनका स्मरण करो, क्योंकि इस कलिकाल में सबसे ज्यादा नाग देवता है। एक बार वो प्रसन्न हो जाए तो जीवन में कभी आने वाली नहीं। अंत में शिव जी को प्रार्थना करो कि सारे नाग देवता हमारे अनुकूल हो जाए। तीसरी बार लोटे में पानी लो, फिर चले जाओ आपकी गाय माता के पास। ज्या बाजू તમે તમારી ગાય માતાને બાંધો છો त्या बाजू તમને ગાય માતાનું ઘરનું ચિહ્ન માટીમાં બળેલું दिखावશે। उस खुर चिन्ह के पास जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उल्टे हाथ में लोटा पकड़ो, सीधे हाथ को पितृ तर्पण के ऐसे कर लो, फिर उल्टे हाथ से सीधे हाथ के हथेली पर पानी डालना है जो अंगूठी की तरफ से गौ माता जी के खुर के चिन्ह में गिरे, और इस तरीके से जल सींचते समय कहो, आ बद्धु जल હું મારા પિતૃ દેવતાઓને સમર્પિત કરું છું। ऐसा कहकर के तीनों लोटे जल चढ़ा। પછી ઘરની ગાય માતાની નો પરિક્રમા કરવી છે, અને પરિક્રમા કરવાના પછી એક ખુરમાં 2 નાગ દેવતા, 4 ખુરોમાં 8 અને पूंछમાં 1, એવી રીતે ખુરમાં 8 અને પૂંછમાં 1, 9 नाग देवताओं का स्मरण करते हुए नाग मंत्र बोलना है जो मैं बोल के बता रही हूँ। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम दित्राष्ट्रम तक्षकम कालियम। जो चोपड़ी में लिखी उस चोपड़ी में लिखित में मिल जाएगी।
मंत्र को बराबर 9 बार बोलना है, गलती से भी 10, 15, 25, 30 बार नहीं। जो भी भाई इस अनुष्ठान को श्रद्धा पूर्वक करेगा, 1.25 महीने तक तो भले ही विशेष परिवर्तन नजर नहीं आएगा, लेकिन 1.25 महीना बीत जाने के बाद इधर उधर दिया हुआ, रुका हुआ, अटका हुआ पैसा, काम धंधा पटरी पर आता दिखाई देगा। 3.5 महीने में आर्थिक उन्नति तरक्की होने लग जाएगी। 1.25 साल में बचत होकर के कर्ज मुक्ति का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और भी इससे बाद करते रहते हो 3.5 साल तक तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों का कर्ज होगा तो भी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद भी करते रहें तो किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों की शादी, सगाई, व्यापार, व्यवसाय सारे काम करते हुए भी एक दुकान से 4 शोरूम और 10 बीघा से 100 बीघा जमीन तक की उन्नति आपकी होगी। खुला के रेहू करके देख लो, बेटी घर की लोटा घर का शिवजी, घर करके देख लो 3.5 महीने तक। 3.5 महीने तक आप भाई इस अनुष्ठान को करना। अगर 3.5 महीने में कोई आर्थिक थोड़ा बहुत भी लाभ हो तो फिर लंबे समय तक करना। और 3.5 महीने करने के बाद भी अगर आपको कोई फायदा नजर नहीं आए तो फिर हमको रोकने टोकने के लिए आ जाना। आज से 3.5 महीने बाद हम आपको मध्य प्रदेश के अलीराजपुरा जिले में मिलेंगे। मेरी बात अगर छूटी निकले तो उसी दिन यात्रा को बंद करके वापस आश्रम चली जाऊंगी। आगे भारत का सफर नहीं करेंगे। देख लो, बस शर्त है इस अनुष्ठान को करने के वाले पुरुष ही कर सकते, औरतें, माताएं, बहनें, बहू, बेटियां नहीं कर सकती। आपको अपने पति, पुत्र, पिता, भाई आदि से करवाना पड़ेगा। दूसरा, करने वाले को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। 8 बजे उठ करके करने वाले को कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर जिस गाय माता जी की पूंछ आप पकड़ोगे वो गाय माता देसी ही होनी चाहिए। रेडियन, फ्रीजियन, ऑस्ट्रियन, अमेरिकन, जर्सी, विलायती काम आने वाली नहीं है। અને પોતાની ગાય માતા હોવી જોઈએ, अड़ोसी पड़ोसी की भी गाय माता काम आने वाली नहीं है। आपके गाय माता होनी चाहिए, नहीं है तो ले आओ। किराए के मकान में रहते हो और मकान मालिक नहीं रहने दे तो किराए की जगह पर रखो, नहीं तो गौशाला में होके वो चले जाओ, पर सेवा के बिना लाभ मिलेगा नहीं। और अंतिम शर्त, गंजा, भंग, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चरस, अफीम कोई दुर्व्यसन है तो उस व्यसन को छोड़ना पड़ेगा तो ही पूरा फायदा होगा, बाकी पूरा फायदा होने वाला नहीं। बोलो गो माता की, वेद भगवान की, नंदी महाराज की। ये हो गई बात। अब बात करते हैं अंत में माताओं बहनों की चिंता की। माताओं को 2 चिंता है। एक तो बच्चा हो जाए तो संस्कारी होना चाहिए, और फिर बच्चा पढ़ाई करे तो अच्छे से पढ़ ले ताकि जिंदगी सुधर जाए। तो ये 2 बातें करते हैं और कथा हमको देते हैं विराम। कोई भी नारी इस धरती पर जैसे गर्भ धारण करती भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे बच्चा अच्छा देना। बुढ़ापे में 4 धाम की यात्रा कराए नहीं कराए, बीमार हो जा हॉस्पिटल ले जा, गुड़ी टिकड़ी दिला दे, रोज नहीं हफ्ते में 2 बार ही सही प्यार से माँ कह करके बात कर ले। और बेटा श्रवण कुमार जैसा हो कि रावण कुमार जैसा, ये बात किसके हाथ में है? कुछ कहती भगवान दे जगह जैसा होगा, भगवान आप ही जो से बालक नहीं। ये बात भगवान के हाथ में नहीं है। ये बात अगर भगवान के हाथ में होती तो हर घर में भगवान राम जी का जन्म होता, रावण का तो खाता ही नहीं होता। ये बात भगवान की नहीं, ये बात सिर्फ आप माताओं के हाथ में। माँ ठान ले तो आज भी कौशल्या बन करके भगवान राम जी को जन्म दे सकती है, और सिर्फ सोच ले तो दुष्ट केतरी बन करके रावण को। बच्चा कैसा हो ये बात सिर्फ आप माताओं के हाथ में। इसलिए सारे संस्कारी संतान ज्योति हो तो 25 काम बताओ छो महाभारत और ब्रह्मवंश पुराण का सार निकाल के। उन 3 नियमों का पालन अगर आप माताएं कर ले तो संस्कारी संतान होगी। पहलू काम, जैसे नारी गर्भ धारण कर ले, 1.25 सेर अनाज हाथ की घंटी से फाड़ा बनाना है, मुंह से भगवान के गीत गाते रहे। उसी फाड़े को गाय माता को जिमा करके गौ माता जी की 9 प्रदक्षिणा करनी है। मंत्र बोलो परिक्रमा के समय, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल रोग सुख संपत्ति चाहे। और अंतिम काम, रात्रि को सोते समय देसी गाय माता जी का दूध पी करके सोना। अभी तमे गौ का गायनु અને बाळकनु અને घंटीनु ની बाळकनु શું સંબંધ? तो भाई घंटी के लिए स्पष्ट लिखा है, बड़े बुजुर्ग कहते भी है
કે ઘંટી કેવલ માત્ર લોટ દળવાનું સાધન નથી, ઘંટી લોટ દળવાના સાથે સાથે વધારે સંસ્કારે છોકરો છોકરી વણાઓ જાણે છે. જ્યારે જ્યારે ઘંટી ગોલ ગોલ ફરે છે ત્યારે ત્યારે સુદર્શન ચક્રનું રૂપ ધારણ કરે છે અને આ સુદર્શન ચક્રમાંથી નીકળવા વાળી સારી શક્તિ માં અને બાળક બંનેને સારી બુદ્ધિ આપે છે. परिणाम स्वरूप बच्चा सतपथगामी बनकर के माता पिता की सेवा करने वाला जन्मता है. पहले घरों घर घंटी माता बहने लोट घंटी पर ही दड़ती. बच्चे कैसे होते थे घंटी के प्रभाव से? 18 साल का होते होते तो लड़का पिता का धंधा संभाल लेता था. 16 साल की बेटी रोटी बाटी बनाना सीख जाती थी. शाम का खाना बेटी बना के तैयार रखती. माँ बाप खेत से आते तो खाना खा करके सो जाते थे. હવે આજે છે આ માટે સંસ્કારી સંતાન જોતી હોય તો પછી એક ઘંટીથી લોટ દળવાનું કામ. બીજું, मुँह से नारी भगवान के गीत गाती, उसका असर भी पेट के बच्चे पर पड़ता था. पहले घर घर में घंटी थी, माता बहनें मुँह से गीत ही गाती थी. अब गीत गाना तो हो गया बंद. फिर आजकल की माता बहनें क्या करेगी? सुबह उठ करके चाय के तपीले में चम्मच घुमाएगी और रात को जो गंदी गंदी सड़ी सड़ी फिल्मी गाने देखी थी उनको गुनगुनाएंगे तो असर तो पड़ेगा. पहले माता बहनें भगवान की गीत गाती तो बच्चे भी राधे राधे ताली पीट करके शाम शाम करने वाले होते थे. अब आजकल के बच्चे राधे राधे करेंगे, नाचेंगे, क्योंकि मम्मी भी नाच वाले गाने देखते तो बच्चा भी नाच करने वाला चले. बीजू काम गाय माता ने प्रदक्षिणा करवी छे. परिक्रमा में बहुत शक्ति है. लोग गोवर्धन जी, गिरिराज जी, कैलाश मानसरोवर जाकर के परिक्रमा करते हैं. आप किसी भी अपने हिंदू मंदिर में चले जाओ, प्रत्येक मंदिर में परिक्रमा मार्ग होता है. क्यों? परिक्रमा करने से भगवान की शक्ति हमको और आपको मिलती है. पारंपरिक धंधा तो वो भी आता था. अब आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी भी, खेती बाड़ी भी, घर मकान के काम भी आ जाएंगे. આ માટે કેવું છું, અગર બહુ હુશાર બાળક જોતો હોય તો પછી બાળક જ્યારે પેટમાં છે ત્યારે ગાય માતાની નો પ્રદક્ષિણા રોજ કરવી. અંતિમ કામ રાત્રે ઊંઘવાના પહેલા 1 ગ્લાસ ગાય માતાનું दूध पी लो. હવે તમે કેવું કે દૂધનું ની બાળકનું શું સંબંધ? તો ભાઈ બડે બુઝુર્ગોને કહા, નારી 9 મહિના સુધી જેવું પીસી દૂધ એવું બનશે પૂત. અને મારી ભાષા તમારે ખબર ન પડતી હો તો બીજી ગાળવાળી ભાષામાં બોલું છું. એ ગાળપણા અહીંયા ચાલે છે. કોઈ બહુ બૂढ़ी बात છે, બહુ बूढ़ी बात છે, उसका छोटा पोता उसकी सुने नहीं माने नहीं परेशान करके छोड़ दे तो बूढ़ी सी बाप ने छोटे से पोते को गाली बोलती है कि तारी माँ तारी मुंह खाई जनियो छे, बोलती है. इसका मतलब माँ जैसा खाता है वैसा बच्चा जन्मता है. तो हमने भी तो यही कहा, अगर नारी 9 महीने तक गैया मैया जी का दूध पिएगी तो बंसी वाले कृष्ण कन्हैया जैसा बेटा होगा. और नारी अगर भैंस का जर्सी का दूध पिएगी तो फिर भैंस जर्सी जैसा बच्चा होगा. और देखो भैंस कभी किसी का सुनती नहीं है. आप भाइयों ने चौकस ध्यान से તમે ગાડી લઈને હાલો, રસ્તે में गाय माता, बेल भगवान, भैंस અને પાડા મળી જાય, તમે ગાડીનો હોર્ન વગાડો, હોર્ન ની आवाज સાંભળે गाय माता, बेल भगवान सड़क से नीचे उतर जाती. बोलो भैंस उतरती है? वगाड़ता जाओ उतरे छे. હવે તમે बताओ, जिस भैंस जर्सी को गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं देता, ऐसी भैंस का दूध पी करके पेट के अंदर बड़े होने वाले बच्चे बुढ़ापे में आपकी सुनेंगे. अभी भी अगर बच्चों को 4 काम माताएं बताती और वो बच्चे काम नहीं करते तो माताएं गाली बोलती ना, ડોવાનું દૂધ પી પાટું થઈ ગયું છે, કામ નથી કરતા. તમને પણ ખબર છે કે ડોવાનું દૂધ પીધું આ માટે આ બાળક એવું થઈ ગયું તો ગાય માતાનું દૂધ પવડાવવા. ડોક્ટર પણ કહેવે છે, કોઈક નારી ગર્ભવતી થયા પછી ડોક્ટરના જોડે જાવે તો ડોક્ટર શું કહેવે છે? બધું સારું છે પણ લોહીની કમી છે. હવે લોહીની કમી આવશે, દૂધ ડોવાનું જર્સીનું પીવો છો, જર્સી ડોવાનું દૂધ પીવા પછી વધે છે ફેટ, માંસ, ચામડું. અને ગાય માતાનું દૂધ પીવાથી વણે છે લોહી. હવે ગાય માતાનું દૂધ પીવું કરી દીધું બંધ. આ માટે હિમોગ્લોબિન લેવલ જોવે છે 12 થી 14 મળે છે 5-7 પછી ડોક્ટર સાહેબ કહેવે છે સલાહ બહુ को बेड रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो પછી ગર્ભપાત થઈ જશે. હવે બેડ રેસ્ટ નો મતલબ ખાઓ પીઓ મોજ કરો ને કામ ધંધા બંધ કરી દો. હવે તમે બતાવો 9 મહિના સુધી બહુ રાણી રેસ્ટ કરે, કામ ધંધા બિલકુલ ન કરે તો પછી ટાઈમ પાસ કરવા માટે શું કરે છે? મોબાઈલ જોવે છે. અને મોબાઈલમાં જેવું જોશે એવું બાળક થશે. પછી તમે જન્મ્યા પછી કેવો છોડી અમારા ખાનદાનમાં તો એવું કોઈ ન હતું, આ ભૂત ક્યાંથી જન્મ્યું? હવે ખબર પડી ક્યાંથી જન્મ્યું.
अब माँ अगर फिल्मी गाने देखेगी, फैशन देखेगी, तो बेटी घूंघट लेने वाली तो बेटी भी तो फैशन करके चलने वाली है। अब एक खबर पड़ी, जो भी माँ देखती असर पड़ता है। आ माटे तो महाभारत में कीधु नहीं कि अर्जुन ने अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा जी को चक्रू भेदने की कला सुनाई। सुभद्रा जी के समझ में आई नहीं आई, लेकिन पेट के अभिमन्यु चक्रू भेदने की कला को सीख गए और बड़े होकर के महाभारत की रणभूमि में अपने नाम को इतिहास में अमर कर गए। इस संसार की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है माँ का गर्भ। जो बच्चा माँ के पेट के अंदर सीख सकता है, वो बाहर आकर के सीखने वाला नहीं है। आ माटे सारी संस्कारी संतान ज्योति हो तो आ त्रण काम करवा छे। बोलो गो मातानी। अब एक बात और बच्चों की कर लेते, पढ़ाई की, क्योंकि सभी माँ बाप चाहते कि बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे अंक लाए, पढ़ लिख करके बढ़िया कोई नौकरी धंधे पर लगे। और पढ़ाई के लिए बच्चों में क्या चाहिए? सिर्फ अच्छे स्कूल से काम नहीं चलेगा, 2 गुण और चाहिए। एक तो आलस्य मुक्त शरीर, दूसरा तेज दिमाग। आज से बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। मंद बुद्धि का बच्चा पढ़ाई करेगा नहीं, एग्जाम में लिखेगा नहीं तो पास होकर के अगले धोरण में जाएगा नहीं। आलस्य का संबंध है तन से, बुद्धि का संबंध है मन से। तन मन का प्रकटीकरण कहा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। आजकल गौ माताएं हो गई कम, भैंसे हो गई ज्यादा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि प्रतिवर्ष हिंदुस्तान के धरती पर गौ माता की संख्या बढ़ती घटती चली जा रही है। आज भारत में 40 करोड़ भैंसे हैं, 17 करोड़ जर्सी, सिर्फ 4 करोड़ गाय माता है। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी हुई? भैंस। 40 करोड़ भैंसे, 4 करोड़ गाय माता है। दूध भारत में ज्यादातर लोग पीते हैं डेयरी का दूध, और डेयरी में भैंस का दूध सबसे ज्यादा जाता है, 2 नंबर जर्सी का। तो हम भी तो दूध जर्सी भैंस का पी रहे, और जर्सी भैंस का दूध पियोगे तो हम भी तो जर्सी भैंस जैसे हो जाएंगे। आलसी जानवर है, खा पी करके चारों पैर छोड़े करके पड़ी रहती, बैठी बैठी पेशाब कर देगी, उसी में नहाना धोना सब कर लेती ऊपर से। गाय माता गोबर गोमूत्र करे, પોતાના જગ્યા ઊભી રહીને પછી કરે છે। હવે તમે बताओ, जिस भैंस को मलमूत्र करते समय या जिस जर्सी को पेशाब करते समय उठने में जोर आया, ऐसी आलसी भैंस का दूध पीने के बाद बच्चों को पढ़ाई करने में, बड़ों को काम करने में, आप माता बहनों को लिपाई पुताई करने में जोर आएगा कि नहीं आएगा? न खबर પડે તો બીજી હજુ એક વાત કહું છું। તમારા આડોશ પડોશમાં જર્સી ને ભેંસ અને ગાય માતા ત્રણેય હશે તો આપ देखो, देसी गाय माता जी के बछड़े को, जर्सी के बच्चे को, भैंस के पाडे को छोड़ो। दूध पीने के बाद भैंस का पाडा सोता है, नींद निकालता है, ઊંઘી जावे छे। जर्सी नो वाछड़ो होय तो मुंडो लटकाने फरे छे, 10 मिनट पछी आ पण ઊંઘી जाए छे। અને देसी गाय माता जी के बच्चे को देखना पूछ उठा करके पूरे पाड़े में दौड़ लगाता है। तो देसी गाय माता अंतर देखना, गाय माता नु दूध पीवा वाळू बाळक सवारे 5:30-6 वाग्या उठीने नहीं धोईने तैयार थई जशे। जर्सी नु दूध पीवा वाळू 6:30 पौણા 7 वाग्या सुधी उठे छे, અને ડોબારું दूध पीवा वाळू बाळक કેટલી વાગ્યા ઉઠે છે? 7-8 વાગ્યા પછી તમે ગાળ બોલો છો, પાડા જેવો પડ્યો છે, ઉઠ। તો ભેંસ का दूध पिलाए એટલે પાડે की तरफ पड़ाए, गाय माता का दूध पिलाए। आलस्य વધે છે ડોબાના દૂધથી। આ માટે કહું છું, આલस्य મુક્ત જીવન જીવે તો ભેંસ का दूध પીવા બંધ કરી દો। બીજી વાત છે અકળ, અકળના માટે મુહાવરામાં કીધું છે કે અકળ મોટી કે ભેંસ, મતલબ ભેંસ અકળ નથી। અને સાચી વાત છે, ભેંસ અકળ નથી। તમે જોજો તમારા ગામમાં ઘણા બધા માણસો છે, સવારે ગાય માતાનું દૂધ કાઢે છે, પછી ગાય માતાને છોડી દે, આખો દિન ગાય માતા અહીંયા કીધું છે કે અકળ મોટી કે ભેંસ, तो दूध गाय माता का। बोलो गो मातानी। बच्चों कुछ समझ आते, कुछ समझ नहीं आते, उम्र વધે છે, ટકા ઓછા થાય છે। હવે બધી સમસ્યાઓની વાત કરું તો 2 કલાકનો ટાઈમ હજુ જોવે છે। इतना समय नहीं है, बाकी किसी को खेत में जाना है, किसी को रोटी भी खानी है, कहीं काम है, तो એટલી બધી ચર્ચા ન કરીશ। पर દીકરાની જેટલી પણ ભણવાની સમસ્યા છે, આ બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન તમને અહીંયા જો ચોપડી મળશે, આમાં લખેલું પડી જશે। वैसे भी बच्चे तो ज्यादा आए नहीं, जो आए वो तो खेलने वाले आए हैं, तो बात करने में फायदा है। अंतिम बात करते हैं मौत की, और कार्यक्रम को देते हैं विराम। और मरना तो पड़ेगा, आए है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक चढ़ सिंहासन से एक बंदे जग। मत मानना मेरी बात का, लेकिन
पाप तो हम सबके जीवन में है। और पाप आता कहाँ से है? भोजन आता कहाँ से है? खेती से। खेती का कोई भी काम करो, निराई गुड़ाई पाणन दवाई काटने लावनी सब में चूसन को मरे। और एक बोरी अनाज अगर अपने हिंदू के घरों में हजारों चूसन को लोग समाज को साफ करते हो, अब एक अकेली अनाज साफ होता नहीं है। देवरानी जेठानी जाए चार माता बहनों एक जगह वैसे और चार हिंदू माता के एक जगह बैठी तो भगवान की गाते गाते काम करेगी। मुझे भूल गए और ऐसी भगवती गाय माता जी को जब खुद खाने से पहले एक रोटली जमाते तो गाय माता तो एक रोटली जमती, लेकिन बचावा भोजन उनको माता की दृष्टि से प्रसाद बन जाता और उसी प्रसाद को खाने से हमारी गति बुद्धि कर्म सुधर करके जीवन में सुख शांति मन चैन आता था। करके देख लो आप सभी माताएं, जिनके घर में गाय माता है उनको तो चिंता की जरूरत है। जिनके घर में गाय माता नहीं है वो आज शाम से पहले नहीं तो कल शाम से पहले एक नानी वाचवी लाजो पर लाजो, कान पकड़ के पहले उठ बैठ लगाना कि माँ गलती हुई भूल हुई तो भगवान जी हमने तुझे जान न समझ के घर से बाहर निकाल दिया, आज से तू मेरी माँ है तेरा बच्चा। प्यार से गौ माता की सेवा करना। फिर रोज जब भी घर में खाना बने 2 टाइम 3 टाइम सोती पहला गाय माता ने एक रोटली जमाड़ी दीजिए, चौथा ने तो 5वां नंबर। પછી તમે लोग जो अंतर देखना 1.5 महीने बाद घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, वाद विवाद खत्म हो जाएगा। फिर प्रेम इतना बढ़ेगा कि जहाँ पर बाप और बेटा एक छत के नीचे खाना नहीं खाते थे, उसी छत के नीचे पिता के सामने 2 भाई एक साथ बैठ करके थाली में भोजन करते नजर आएंगे। ऐसा कोई सुखद परिवर्तन नजर आए तो आप जीवन भर गौ माता की खूब सेवा करना, और ऐसा कोई सुखद परिवर्तन नजर नहीं आए तो मैं आपको गौ माता की सेवा करने वाली करके देख लो। जो सुख शांति अमन चैन आनंद मौज उसको जला करके राख कर दो अगर आपके घर में चूल्हा जलता है तो, पर कोई भी प्लास्टिक की बोतल इधर उधर फेंकनी नहीं, ठीक है? अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे दे सकते हो विदाई। विदाई का मतलब है ये आता यहाँ से शाम को अगले गांव के लिए रवाना होगी। कहीं कौन सा गांव? Thank you.